Very good morning, dear students. Now, in this lecture of accountancy, today I am going to cover topic interest on capital. The remaining two questions of this topic I will complete in this lecture. This is from your chapter number 2, that is accounting for partnership firm fundamentals. See question number 38. Interest on capital के rules. I have told you the rules of interest on capital. Interest on capital, if interest on capital is, let's have a review of it. If interest on capital is charge is appropriation of profit, then interest on capital will be allowed only when there is profit in the firm, and it is allowed till the limit of profit only. But if interest on capital is charge against profit, then it will be allowed whether the firm is getting loss. ठीक है बेटा, तो ये रूल्स मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लास्ट लेक्चर ऑल्सो, इन इवन टुडे इन योर जूम क्लास ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन दिस लेक्चर. Now see question number 38. Lalan and Balan were partners in a firm, sharing the profit in the ratio 3:2. Their fixed capital on 1st April 2017 were Lalan rupees 1 lakh and Balan rupees 2 lakh. They agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to change on drawing at the rate 15% per annum. The firm earned a profit before all above adjustment of rupees 30,000 for the year ended on 31st March 2018. The drawing of Lalan and Balan during the year were rupees 3,000 and rupees 5,000 respectively. Showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Lalan and Balan. The interest in capital will be allowed even when if the firm incurs loss. देखो ये वाला केस है, केस नंबर 2, when interest on capital is allowed when whether the firm incurs loss. Now see in the working notes, firstly हमने कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. Interest on drawing 3,000 into 3,000 is the drawing of Lalan. 3,000 into 15 upon 100 into 6 upon 12. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी आ गई? लालन की आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बालन रुपीज़ 5,000 उसने विड्रॉ करा था. 5,000 into 15 upon 100 into 6 upon 12, that is 375. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बालन. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले आपने बनाया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दैट इज 30,000 एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया लालन एंड बालन का, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इट विल बी अलाउड फुल वेदर द फर्म गेट लॉस. तो लालन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया दैट इज 12,000 एंड बालन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दैट इज़ 24,000. ये आपने उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट कर लिया दोनों का. तो 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट फर्म का जो प्रॉफिट है दैट इज़ 330,000. तो जो लॉस हो गया 36 माइनस 6,000 का लॉस हो गया. ये लॉस ट्रांसफर्ड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. नाउ सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने यहाँ पे आगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज़ लॉस ट्रांसफर्ड 6,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लालन 225, बालन 375, 600 का हो गया. 6,000 में से 600 माइनस हुआ तो रिमेनिंग बचा 5400. ये लॉस ट्रांसफर्ड हो गया टू इन लालन एंड बैलेंस कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3240 एंड 2160. बेटा जब भी प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसमें आपका जो 30,000 प्रॉफिट था, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल था 36,000 का, तो लॉस ट्रांसफर हो गया 6,000 का टू द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रोवाइडेड. तो लॉस आ गया आपका दोनों पार्टनर्स का दैट इज 3240 एंड 2160. Now see next question, question number 39. On 1st April 2018, X, Y and Z started a business in partnership. X contribute rupees 90,000 at first but withdraw rupees 30,000 at the end of 6 months. Y introduce rupees 75,000 at first and increases it to rupees 90,000 at the end of 4 months but withdraw rupees 30,000 at the end of 8th month. Z bring in rupees 75,000 at first but increases it by rupees 60,000 at the end of 7th month. During the year ended on 31st March 2019, they make a net profit of rupees 42,000. Show how the partners should divide this amount on the basis of effective capital employed by each partner. देखो एक्स एंड वाई दो वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं. एक्स ने 90,000 पहले कंट्रीब्यूट करा और फिर विड्रॉ कर लिया 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ. वाई ने इंट्रोड्यूस करा 75,000 फर्स्ट और फिर इंक्रीज़ कर दिया कैपिटल बाय 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ और फिर विड्रॉ कर लिया 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ. जेड जो है 75,000 लेकर आया पहले, फिर उसने इंक्रीज कर दिया बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7th मंथ. सी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 90,000 वो लेकर आया था 6 मंथ के लिए, तो 90,000 का 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. भले आप एक्स की कैपिटल फाइंड आउट करिए. 90,000 इंट्रोड्यूस करा तो 90,000 इंटू 6, तो एक्स की कैपिटल फॉर 6 मंथ 5,40,000 और फिर 60,000 उसने फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिया. 60,000 फॉर 6 मंथ दैट इज़ 3,60,000. तो टोटल कैपिटल ऑफ एक्स इज़ 9 लाख. सेम वाई की कैपिटल 75,000 फॉर 4 मंथ्स के लिए 75,000 थी दैट इज़ 3 लाख. फिर 75,000 इंटू 4, देन उसके नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए 90,000 हो गई दैट इज़ 3,60,000 और फिर नेक्स्ट के 4 मंथ्स के लिए 60,000 हो गई दैट इज़ 2,40,000. तो टोटल कैपिटल ऑफ वाई इज़ ऑल्सो 9 लाख. ठीक है, वाई की कैपिटल कितनी आ गई? 9 लाख आ गई आपकी.
देन आपका इसका जेड की कैपिटल देखिए, जेड की कैपिटल ₹75,000 फॉर 7 मंथ, ₹5,75,000 और ₹1,35,000 फॉर 4 मंथ, दैट इज़ 6,75,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ जेड इज़ 12 लाख। अब इनका जो रेशियो बन गया एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का, दैट इज़ 9 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख। इट इज़ 9, 9, 2, 12 और 3, 3, 4 का रेशियो आ गया तीनों पार्टनर्स का, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा था देन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इन देयर इंटरेस्ट रेशियो, दैट इज़ 9, 3:3:4। तो 42,000 इंटू 3/10, 42,000 इंटू 42,000 को आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था आपका 42,000 था। इस 42,000 को 3/10, 3/10 एंड 4/10 में डिवाइड कर दिया अमंग द पार्टनर्स, और ये आपका जो आ गया 12,000, 12,600 एंड 16,800 आ गया बेटा। 12,600 और 16,800 होगा ये आपका। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, सबसे पहले आपने कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करा और कैपिटल के रेशियो में ही आपने डिवाइड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल गया, क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा था इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल प्रोवाइड नहीं होगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट गिवन होगा। इज इट क्लियर बेटा? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। डू ऑल वर्क इन योर फेयर कॉपी, और सारा का सारा काम फेयर कॉपी में होना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम। कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।